یہ جنگ کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ جنگ کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے 1803 کے فتوے کے بعد یہ جنگ چلنی شروع ہوئی اور جنگ کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا اور علماء کے ساتھ ان کی عوام بھی شرکت کرنی شروع کر دیا۔ اور 1826 کے اندر جب ٹیپو سلطان شہید ہو چکے تھے اور انگریز دلی پہ قابض ہو چکا تھا اور انگریز نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا، لیفٹیننٹ جنرل نے جا کر کے دلی میں قبضہ جمع کر کے اور دوبارہ قبضہ کر کے جب یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج سے حکومت تو حکم ہمارا چلے گا، حکومت کسی کی بھی رہے گی، لوگ تو اللہ کے رہیں گے لیکن کمپنی بہادر کا حکم چلنے والا ہے، تو پھر ایسے حالات کے اندر 1826 کے اندر اور 1827 کے اندر 1803 میں یہ فتویٰ آ رہا ہے، 1803 میں یہ فتویٰ آ رہا ہے اور اسی درمیان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے ہاں جو 4 لڑکے ہیں آپ کے پیدا ہوئے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور چوتھے بیٹے کا نام ہے شاہ عبد الغنی محدث دہلوی علیہ الرحمہ۔ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی علیہ الرحمہ، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا نام شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ ہے۔ یہ ان کا اعجاز کہیے، یہ ان کی کرامت کہیے۔ سید احمد شہید دہلوی علیہ الرحمہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، یہ ان سے پڑھنے کے لیے آئے اور دہلی میں علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے اپنے استاد کے مرید ہو گئے اور مرید ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ سے بیعت اور خلافت حاصل کر لی۔ یہ شاہ محدث سید احمد شہید دہلوی علیہ الرحمہ یہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے، ایک الٹے پاس بریلی ہے جہاں سے ایک حضرت صاحب پیدا ہوئے جن کو سب دنیا جانتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک رائے بریلی ہے جہاں سے سید احمد شہید دہلوی علیہ الرحمہ پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے اس کے بعد سنا کہ اب راجہ رنجیت سنگھ جو پنجاب کا حکمراں بن چکا ہے اور پنجاب کی گورنری جس کے قبضے میں آ چکی ہے، ادھر وہ ظلم ڈھا رہا ہے، ادھر انگریز ظلم ڈھا رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلا کہ اس نے پنجاب کے علاقے میں لاہور کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا رکھا ہے، عورتوں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کر رہا ہے اور لوٹ رہا ہے، اور اس کے کارندے، اس کے چیلے اور اس کے چپاٹے جو سمجھ میں آتا ہے کارروائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا اور کہا جا کر کے وہاں سے پتہ لگا کر کے آؤ کہ حالات کیسے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ گئے اور لوٹ کر کے آئے اور آ کر کے حالات کے بارے میں آپ نے پوری اطلاع دی اور بتلایا کہ صورتحال وہی ہے جو آپ کو سنائی دی گئی ہے، صورتحال وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے، صورتحال بالکل وہی ہے کہ گھوڑوں کا استبل مسجد کو بنایا جا رہا ہے، ماں اور بہنوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کے قدم مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، انگریزوں کی اسے پشت پناہی حاصل ہے۔ ایسے میں سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے اپنے رضاکاروں کی بھرتی کا اعلان کر دیا، مجاہدوں کی بھرتی کا اعلان کر دیا، اور جو آپ کے مریدین ہیں سید احمد شہید دہلوی علیہ الرحمہ یہ وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، اور یہ وہ شخص ہیں جن کی کتاب تقویۃ الایمان پڑھ کر کے نہ معلوم کتنے کافروں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جہاں کھڑے ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کر کے شرابی شراب پینا چھوڑ دیتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے جانی زناکاری سے توبہ کرتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے بدکاری سے توبہ کر لیتا تھا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے، 700 رضاکار 10,000 مریدوں کو لے کر کے انہوں نے پاکستان کے علاقے پر حملہ کیا، اور پہلے ہی حملے میں آپ نے کراچی کو فتح کر لیا، اس کے بعد اکوڑا خطک کو فتح کیا، کیان زئی کو فتح کیا، عثمان زئی کو فتح کیا۔ فتح کرتے کرتے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور لاہور میں کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا کہ آج سے یہاں حکم راجہ رنجیت سنگھ کا نہیں چلے گا، یہاں اس کی حکومت نہیں چلے گی، یہاں اس کا قانون نہیں چلے گا، اب قانون چلے گا، اب قانون چلے گا۔ تو یہاں پہ
इस्लामी कानून चलेगा। आज से शराब बंद होती है, आज से जुआ बंद होता है, आज से तमाम खुराफात बंद की जाती है, आज से इस्लामी कानून के मुताबिक लोग यहाँ पे जिंदगी गुजारेंगे। ये ऐलान करने के बाद आपने आगे बढ़ना शुरू किया। राजा रणजीत सिंह का कासिद आया, राजा रणजीत सिंह के कासिद ने आकर के आपसे ये कहा कि ऐसा है आप यहीं पर ठहर जाइए, ऐसा है आप यहीं पर रुक जाइए, अब आप आगे मत बढ़िए, अब आप आगे मत जाइए, जो आप कहिए शर्त मंजूर है, कुछ इलाका आप ले लीजिए, कुछ इलाका हम ले लेते हैं और सुलह इसी पर हो जाए। कुछ इलाके की हुकूमत आपके हाथ में होगी, कुछ इलाके की हुकूमत हमारे हाथ में होगी, हम जहाँ हैं वहीं पे हुकूमत करेंगे, आप जहाँ हैं आप वहीं पे हुकूमत करेंगे। लेकिन हजरत ने फरमाया कि हम मुल्क लेने के लिए नहीं आए हैं, हम हुकूमत करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा मकसद मुल्क गिरी नहीं है, हमारी ये हवस नहीं है कि हमें हुकूमत हासिल हो जाए, हमारा ये मकसद नहीं है कि ये मुल्क हमें मिल जाए और यहाँ के छोटा सा इलाका हमें मिल जाए। हम लोगों को तुम्हारे चंगुल से आजाद कराने निकले हैं, हम जुल्म से निकालने निकले हैं। हम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिस हैं। आका का फरमान है अंसुर आका का जालिमन व मजलूमा, अपने भाई की मदद करनी है, वो जालिम है तब भी, वो मजलूम है तब भी, इसलिए रुकने का नाम नहीं। और ये कारवां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते बढ़ते आप बालाकोट की पहाड़ी पे पहुंचे हैं और बालाकोट की पहाड़ी पे जब आपका कारवां पहुंचा तो कुछ कौमी गद्दारों ने राजा रणजीत सिंह को खबर दे दी कि सैयद अहमद शहीद अली रहमा यहाँ पे आ चुके हैं और उनका कारवां आ चुका है, उनका काफिला जंग करने के लिए यहाँ पहुंच चुका है। नतीजा ये निकला कि तहज्जुद के वक्त आपके ऊपर सबसे मारा गया। 5 मई 1831 को आपके ऊपर सबको मारा गया और सबको मार करके आपको सज्जे की हालत में शहीद कर दिया गया। आपका जिस्म कहीं दफन है, आपका सर कहीं दफन है, हवा कहीं है, आपको वहाँ पर शहीद कर दिया गया। उसके बाद शाह इस्माइल शहीद अली रहमा मैदान कारसार में आए और उन्होंने जंग को गरमाया और उन्होंने जंग को वहाँ पे शोला बनाया। शोला इन्हीं शोले चौवाला में तब्दील किया और सिखों से जंग शुरू हुई। ये जंग 4 दिन मुसलसल चलती रही और लगातार आप लड़ते रहे। ऐसी जंग की हालत में सैयद शाह इस्माइल शहीद अली रहमा को एक सिख ने आपके सामने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दी और गाली दे करके आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बुरा भला कहा। शाह इस्माइल शहीद अली रहमा ने फरमाया, खुदा की कसम जब तक तेरी गर्दन नहीं मार दूंगा तब तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बाज वो भी होते हैं कि अगर वो अल्लाह के भरोसे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर देता है। लोगों में बाज मुसलमान वो भी होते हैं, बाज साहिब ईमान वो भी होते हैं, बाज कलमा गो वो भी होते हैं कि अगर वो अल्लाह के भरोसे कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरी कर दिया करता है। यही हाल यहाँ पे हुआ। उस सिख के बारे में आपने कसम खा करके कहा, जब तक तेरी गर्दन नहीं उतार लूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। आपने उसका पीछा शुरू किया और पीछा करते करते आप उसके पीछे जा रहे हैं। पीछे से दूसरे सिख ने वार किया, आपकी गर्दन जिस्म से अलग हो गई। फिर भी उसका पीछा करके 10 फरलांग तक उसके पीछे गए और उसकी गर्दन पे वार किया। वो मर करके गिरा मरकूज। उसके बाद उसके ऊपर आपकी नाज़े मुबारक गिरी और आप शहीद होकर के गिरे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पूरा हुआ जिसमें आपने ये फरमाया था कि अगर मेरा कोई इस तरह का बंदा जिसे लोग परागंदा हाल समझते हैं, जिसे लोग परागंदा बाल समझते हैं, जिसकी पोजीशन देखने में अच्छी नहीं होती है, जिसे लोग दरवाजों से लौटा दिया करते हैं, जो शायद सलाम करे तो लोग सलाम का जवाब भी न दे, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे अगर कह देता है सुबह बारिश होनी है तो होकर के रहती है, वो अगर कह देता है आज दोपहर में सूरज को निकलना है तो निकल के रहता है। यही सूरत हाल यहाँ हुई। आपने कहा कि जब तक तुझे मार नहीं देता हूँ तब तक मैं शहीद नहीं होने वाला, तब तक मैं मरने वाला नहीं। नतीजा ये निकला कि गर्दन कटने के बावजूद 10 फरलांग तक दौड़ा करके आपने उसे मारा है और उसके बाद खुद उसके ऊपर शहीद होकर के गिरे हैं और फिर 9 मई को आपकी शहादत हुई। नतीजा क्या रहा? ये जंग शिकस्त में तब्दील हुई और बालाकोट की पहाड़ी पे
बाला कोट की पहाड़ी पे 400-500 लोग शहीद हुए, जिसमें उलमा ज्यादा हैं और उनके मातहत में काम करने वाले, या कह लीजिए कि उनके शागिर्द ज्यादा हैं, या कह लीजिए कि मुरीदों की तादाद है, या कह लीजिए कि कुछ मुसलमानों की तादाद है। यहाँ पे इतने लोगों को शहीद किया गया और उसमें से बच गए मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना विलायत अली, मौलाना ममलूक अली और कुछ दूसरे हजरात। ये लोग बच करके वहाँ से निकल आए। 1821 के अंदर ये काफिले के अक्सर हजरात शहीद कर दिए गए। बालाकोट की इसी पहाड़ी पे जो जंग हुई है उसको तहरीक बालाकोट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे जो लोग शहीद किए गए हैं इन्हें शुहदाए बालाकोट के नाम से जाना जाता है। आज भी चले जाओ, यहाँ नहीं बालाकोट है, पाकिस्तान के इलाके में बालाकोट है। आज भी चले जाओ, शहीदों का खून वहाँ जोश मारता हुआ नजर आएगा। अगर दिल दिमाग सही है तो देखने में नजर आएगा कि यहाँ किसी जमाने में अकाबरीन का खून चलता था, यहाँ किसी जमाने में अकाबरीन ने कदम रखा था, यहाँ किसी जमाने में उस अल्लाह वालों की निगाहें पड़ी थी, जिनकी निगाहों से दिल की दुनिया बदल जाया करती है। इसी तहरीक को तहरीक बालाकोट के नाम से याद किया जाता है, इसी तहरीक को तहरीक बालाकोट का नाम दिया जाता है, और इन्हीं शुहदा को शुहदाए बालाकोट कहा जाता है। अब 1831 से लेकर के 1857 तक मुख्तलिफ मीटिंगें उलमा की चल रही है, कोई नतीजा नहीं साबित हो रहा है। घेर घेर करके उलमा को मारा जा रहा है, जहाँ पे मिलते हैं उनको शहीद किया जा रहा है। मौलवियत बगावत का दूसरा हमारा लफ्ज करार दे दिया गया है। वायसराय बरतानिया और वहाँ से तार दिया जा रहा है कि जहाँ भी किसी मौलवी को देखो वहाँ बगैर किसी ताकीद के मौलवी को कत्ल कर डालो, मौलवी को मार डालो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लिखता है, यहाँ का डॉक्टर जो कि इससे पहले एक ओहदे पर भी फायज रह चुका है, वो लिखता है कि जहाँ भी किसी मौलवी को देखा जाए उसे पकड़ करके मार दिया जाए। वो अंग्रेजों ने लिखा है कि हमने फिर इनको अजियतनाक सजाएं दी, हमने फिर इनको शहीद नहीं किया बल्कि मारा है, हमने इनके कानून वरासत को मंसूख किया है, हमने इनको तहस नहस करने का काम किया है, हमने इनके औरतों को बेवा किया है, हमने इनके बच्चों को यतीम किया है, और जो कुछ बन पड़ा हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। और यही नहीं, हर जगह ठोस कार्रवाई की जाने लगी। उलमा का बचा खुजा तबका इधर उधर से अपने को जुटाने में मसरूफ है, मीटिंगें पे मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन कोई नतीजा साबित नहीं हो रहा है। नतीजा ये है कि 1831 से 1857 तक ये मामला यूं ही चलता रहा। अंग्रेजों की हुकूमत इतनी मजबूत हो गई कि वो पूछिए मत। सबसे बदनसीब बादशाह बहादुर शाह जफर, उसे भी 1857 में गिरफ्तार करके लाया जाता